Hello 11th class political science students, welcome back to our channel. As you all know, we have completed two chapters and we have completed Constitution, why and how. Along with that, we have also completed chapter Rights in Indian Constitution. We have also completed their NCRT solution, or you can say NCRT exercise. And from today's class, we are going to start new chapter, that is election and representation. Okay, election and representation. If you think upon the name of the chapter, election, right? You all are aware by this term. And you can say from last 7 to 8 years, you are using this particular term also, election, right? And representation basically is the method, you can say, by which we can show, or you can say it's the medium by which we are able to show our interest. Those people who are elected by us, we feel that yes, we are having a representation in the policy making of the country, in the law making of the country. Okay, and election basically, election is a mechanism by which we elect a representative. क्योंकि आप लोगों ने जब डेमोक्रेसी के बारे में स्टडी किया होगा, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि डेमोक्रेसी इज हैविंग टू टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. राइट, सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी बेसिकली क्या होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन विच पीपल आर इलेक्टेड, और यू कैन से पीपल आर डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस. सपोज अगर किसी कंट्री में अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, सो व्हाट विल हैपन, जब लॉ बनेगा तो सबसे पूछा जाएगा. पहले क्या होता था, स्मॉल जब कंट्री के साइज होते थे, तब वहां पर एंशियंट ग्रीस जैसी कंट्री में ये सिस्टम एग्जिस्ट करता था. But countries like India, it's not possible that we will ask from every person whether he or she is in the favor of the law or not. अगर हम ऐसा करना शुरू कर दें तो कोई पॉलिसी बनेगी ही नहीं. That's why we have adopted representative democracy. And representative democracy means we directly do not rule, but we rule with the help of those representatives whom we have elected, whom we have casted our votes. Right? So let us have the introduction what we are going to study in this chapter particularly. Have you ever played chess? What would happen if the black knight suddenly start moving straight rather than 2.5 square? यानी कि अब देखो, आपको पूछा गया चेस में अगर जो ब्लैक नाइट होता है, अगर वो सडनली स्ट्रेट चलना शुरू कर दे बजाय के 2.5 स्क्वायर के. और व्हाट वुड हैपन इफ इन अ गेम ऑफ क्रिकेट देयर वर नो अंपायर्स? क्या हो अगर क्रिकेट का मैच और उसमें अंपायर्स ही ना हो? इन एनी स्पोर्ट वी नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स. चेंज द रूल्स एंड द आउटकम्स ऑफ द गेम वुड बी वेरी डिफरेंट. अब देखो, हर एक गेम में आपको रूल्स रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है. अगर आपने गेम चेंज कर दिए, गेम के रूल्स चेंज किए, तो आउटकम ऑफ द गेम दैट विल बी क्वाइटली डिफरेंट. Similarly, a game needs an impartial umpire whose decision is accepted by all the players. और सिमिलर क्या होता है? A umpire, an umpire is also required. And why the umpire is required? Because his or her ideas and decisions are accepted by all. Right? So the rules and the umpires have to be agreed upon before we begin to play a game. अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रूल्स और अंपायर, उनको कुछ चीजों के ऊपर पहले ही अग्री होना पड़ता है बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द गेम. अगर मान लिया आपने रूल आप बाद में बना रहे हो, अंपायर को और अंपायर को जो है उसको बाद वाले रूल्स का कुछ पता ही नहीं है, सो दैट अंपायर विल नॉट बी एबल टू गिव प्रॉपर डिसीजन. इसलिए आपको गेम शुरू होने से पहले ही आपको अपने गेम्स के रूल डिफाइन करने पड़ते हैं. एंड देयर शुड बी अ सिमिलैरिटीज. Okay, so what is the true of our game is also true of election. और यही जो चीज हमारे गेम्स के बारे में ट्रू है, वही हमारे इलेक्शन के बारे में भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है. There are different rules or systems of conducting elections. The outcome of election depend on the rules we have adopted. अब देखो, स्टोरी ऊपर वाली आपने क्यों पढ़ी? Because we want to come on the part of election. जैसे आपने पढ़ा कि हर एक गेम के लिए कुछ ना कुछ रूल्स रिक्वायर्ड होते हैं.
इन द सेम मैनर इलेक्शन के लिए भी कुछ ना कुछ मेथड्स हमेशा डिजाइन होते हैं, राइट आपने जैसे पढ़ा उसमें अंपायर्स होते हैं, तो यहाँ भी क्या होता है, एक पूरी की पूरी प्रोसेस पे चेक रहता है, कंट्रोल रहता है, सो दैट द डिसीजंस आर एक्सेप्टेड बाय ऑल। कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल बॉडी होगी उसके लिए। गॉट इट? सो आफ्टर दैट we need some machinery to conduct the election in an impartial manner. Since these two decisions need to be taken before the game of electoral politics can begin, these cannot be left to any government. इसलिए हमें क्या चाहिए? We need some machinery. किसके लिए? To conduct the election in an impartial manner, ताकि जो भी आप इलेक्शन करवा रहे हो impartially हो जाए, उसमें कोई partiality ना हो. Since these two decisions need to be taken before the game, है ना, और जो आपने जो भी डिसीजंस लेने हैं वो गेम के शुरू होने से पहले आपको लेने पड़ेंगे। इन द सेम मैनर, मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के शुरू होने से पहले आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, आपको अपना इलेक्शन मेथड आपको डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? दीज कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनी गवर्नमेंट। और ये अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट पे छोड़ दिए ना, तो एवरी टाइम देयर विल बी चेंजेस ओनली। क्यों? क्योंकि जो पार्टी पावर में है दैट विल ट्राई टू कंटिन्यू विद द पावर ओनली, इसलिए वो हमेशा चाहेगी कि हमेशा से मैं ही पावर में रहूं। इसीलिए क्या आपको क्या रिक्वायर्ड है? इसलिए आपको रिक्वायर्ड है कि गवर्नमेंट के हाथों में आपको ये वाली मशीनरी प्रोवाइड नहीं करवानी है। ऑलरेडी इट शुड बी डिफाइंड दैट बाय विच मेथड वी आर गोइंग टू हैव इलेक्शन इन द कंट्री। Got it? That is why these basic decisions about elections are written down in the constitution of a democratic country. और इसीलिए कि जो आपका इलेक्टोरल मेथड है, इलेक्शन मेथड है, उसके डिसीजंस हैं, वो कहीं ना कहीं एक टॉय ना बन जाए। किसके हैंड्स में? इन द रूलिंग पार्टी और इन द अदर पार्टीज। दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन्ड एवरीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। और इसीलिए क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, always they define each and everything in their constitution. Got it? After that, in this chapter, we shall study the constitutional provision regarding election and representation. और इस चैप्टर में आप वही स्टडी करने वाले हो कि कौन कौन से इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स होने वाले, कौन कौन से प्रोविजंस हैं. We shall focus on the importance of the method of election chosen in our constitution and the implication of the constitution provisions regarding impartial machinery for conducting election. इसके अलावा हम क्या स्टडी करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज के ऊपर फोकस किया गया है, कौन से इलेक्शन के मेथड को हमने चूज किया है, और उसके अलावा कौन कौन से प्रोविजंस हैं, सो दैट वी कैन एंश्योर दैट इलेक्शन शुड बी इम्पार्शियल इन द कंट्री एंड वी आर एबल टू कंडक्ट every election in any impartial manner. So we shall also look at some suggestions for amending the constitutional provision in this respect. इसके अलावा अब देखो कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं. So we will also study that which suggestion should be there for the amending our constitutional provision regarding election and representation. After reading this, what you will be able to understand? डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में जो सिस्टम अडॉप्ट हुआ है उसकी बेसिक फीचर्स क्या क्या है, द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोविजंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अगर फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, द डिबेट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्यों होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, किस मैनर में होने चाहिए, ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन आफ्टर द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर केयरफुली. So this was the introductory part of the chapter. I hope it's clear to all of you and you are able to understand what is the importance of election, right, and what we are going to discuss in this particular chapter. So let us start now. Elections and democracy. Let us begin by asking ourselves two simple questions about election and democracy. अब अपने आप से आपको क्वेश्चन पूछने हैं. Can we have democracy without holding elections? क्या ऐसी कोई कंट्री हो सकती है जिसमें डेमोक्रेसी है बट विदाउट इलेक्शंस? Can you imagine? Can we hold election without having democracy? क्या हम डेमोक्रेसी के बिना भी इलेक्शन कंटेस्ट करा सकते हैं? So let us think upon this question. देखो कहीं ना कहीं जहां इलेक्शंस हो रहे हैं ना, वी कैन कंसीडर कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी.
क्योंकि अगर आप मोनार्की की बात करोगे देयर विल बी हेरिडिटरी पोजीशन, मतलब सपोज अगर फादर है तो फादर की डेथ के बाद उसका सन विल बी द न्यू किंग, राइट। और अगर एक डिक्टेटरशिप है तो वहां तो आपको इलेक्शन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डिक्टेटरशिप के तो वर्ड्स ही लॉ बन जाते हैं। सो बेसिकली डेमोक्रेसी की कहीं ना कहीं मेजर आइडेंटिफिकेशन है कि वहां पे रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शंस होते हैं। Got it? That's why we are calling it government of the people, for the people and by the people. So let us have a discussion in the classroom on both this question by using example from whatever we have learned so far in the previous class. अब आप वो सारे रिकॉल करने वाले हो जो आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है. So the first question reminds us of the necessity of representation in a large democracy. जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बताता है आपको, वो रिमाइंड करवाता है नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि अब देखो इलेक्शंस क्यों जरूरी है. इलेक्शन आई हैव टोल्ड इट्स अ मैकेनिज्म बाय व्हिच वी आर एबल टू चूज अ रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट. सो बेसिकली ये लार्ज डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए नेसेसरी थिंग है. All citizens cannot take direct part in making every decision. As I told you कि अगर हमारी जैसी कंट्री में आप डायरेक्टली लोगों से पूछना शुरू कर दो कि भाई तुम एग्री करते हो इस लॉ से, तो दैट्स नॉट पॉसिबल. सो सारे के सारे सिटीजन्स तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते लॉ मेकिंग में. Therefore, representatives are elected by the people. इसलिए क्या होता है, we are having representative democracy. And this is how election become important. और यही रीजन है कि जिसकी वजह से हमारे इंपॉर्टेंट जो इलेक्शन है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. Whenever we think of India as a democracy, our mind invariably turns to the last election. अब देखो कहीं ना कहीं जब आपके दिमाग में आता है ना डेमोक्रेसी, तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वही चीजें आ जाती है, लास्ट इलेक्शन. It means directly we are coming on the point of elections only, whether we are talking about democracy. Elections have today become the most visible symbol of a democratic process. और आज के टाइम पे अगर आप डेमोक्रेसी की बात करोगे तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल बन गए हैं हमारे इलेक्शंस. Got it? After that, our direct democracy. Okay, we often distinguish between direct and indirect democracy. I have told in the starting of the class only कि आपकी डेमोक्रेसी टू टाइप्स की होती है, डायरेक्ट ऑल्सो एंड इनडायरेक्ट, जिसको आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हो. Our direct democracy basically कौन सी होती है? Our direct democracy is one where the citizens directly participate in the day-to-day decision making and in running of the government. कहां पर होती है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी? जहां पर डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है, रनिंग ऑफ गवर्नमेंट पे लोगों का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है. एज आई गिव एग्जांपल कि अगर लॉ बनेगा तो आपसे पर्सनली पूछा जा सकता है, राइट. सो उसके बाद द एंशिएंट सिटी स्टेट ऑफ ग्रीस वर कंसीडर्ड एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि तब तक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी. सो देयर वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. Okay, many would consider local government, especially Gram Sabha, to be closest example of direct democracy. और बहुत सारे लोग आज के टाइम पे किसको कंसिडर करते हैं? जो ग्राम सभा वाला, क्योंकि देखो गांव में जो भी डिसीजन होते हैं तो ग्राम सभा के कहीं ना कहीं इन्विटेशन पे ग्राम सभा के सजेशंस भी होते हैं. और ग्राम सभा बेसिकली है क्या? जिसमें गांव के सारे अडल्ट इंक्लूड होते हैं, सारे के सारे ऐसे मेंबर जिनके पास राइट टू वोट है. Got it? तो हम उसको क्लोज कंसीडर कर लेते हैं टू द डायरेक्ट डेमोक्रेसी. But this kind of direct democracy cannot be practiced when the decision has to be taken by lakhs and crores of the people. लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो वर्क नहीं कर पाएगी जब आपको लैक्स और करोड़ पीपल के बीच में डिसीजन लेना है. That is why rule by the people usually means rule by people's representative. इसलिए क्या हो जाता है, अगर आप डायरेक्ट रूल नहीं कर पा रहे हो, सो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव. एंड रूल बाय पीपल मीन्स रूल बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. समझ आया? यानी कि जहां पर अगर मान लिया आपको डिसीजन लेना है और कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वी कांट इमेजिन कि वहां पे लोगों से ऐसे इंडिविजुअली डिसीजन के बारे में कहीं ना कहीं डिस्कशन होने वाला है, राइट. सो इसीलिए क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब अब क्या कंसीडर करते हैं? डेमोक्रेसी मीन्स पीपल रिप्रेजेंटेटिव, रूल बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स. गॉट इट? होप till now everything is completely clear to all of you. Let us move further now. In such an arrangement, citizens choose their representatives
who in turn are actively involved in governing and administering the country. इस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे और वो बाद में क्या करते हैं, गवर्न करते हैं और एडमिनिस्टर करते हैं कंट्री को. The method followed to choose this representative is referred to as an election. अब यही है, आपको चैप्टर यही पढ़ना है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन. तो इलेक्शन आपका बेसिकली क्या हो गया, इलेक्शन जब आप, हमने क्या पढ़ा कि आप डायरेक्टली रूल नहीं कर सकते हो क्योंकि लैक्स पीपल हैं, करोड़ ऑफ पीपल्स हैं. इसीलिए क्या हो रहा है कि हमारे थ्रू जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने इलेक्ट कर लिया वो कहीं ना कहीं रूल बना रहे. गॉट इट. सो यही मेथड जिसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, यही मैकेनिज्म, यही मेथड है इलेक्शन. Thus, the citizens have a limited role in making major decisions and in running the administration. इसीलिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि लोगों के पास ना लिमिटेड रोल होता है, किसमें, लॉ बनाने के लिए. गॉट इट. और डिसीजंस को लेने के लिए. दे आर नॉट वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ द पॉलिसीज, वो ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होते पॉलिसी मेकिंग में. सिटीजन्स आर इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली. अब देखो, आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, वो कैसे, आपने जिसको इलेक्ट कर लिया वही आपके बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हैं. राइट. देखो कैसे एग्जांपल, जैसे आपकी क्लास का मॉनिटर है ना, मान लिया आपकी क्लास में मॉनिटर का आपने इलेक्शन करवा दिया एंड दैट पर्सन who has been elected as your class representative, as your monitor, he or she is taking decisions on behalf of you. तो आपका क्या हो गया, इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन हो गया ना. इनडायरेक्टली कैसे हुआ, क्योंकि आपने उसको चूज कर लिया, अपने क्लास मॉनिटर को, और वो क्लास मॉनिटर आपके बिहाफ पे डिसीजंस ले रहा है. होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो people are not actively involved in the policy making. Citizens are involved only indirectly and through their elected representatives. In this arrangement where all major decisions are taken by elected representatives, this method by which people elect their representatives become very important. इसीलिए जब हम आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में यही सिस्टम यूज करते हैं कि जहां हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल कर रहे हैं, तो वो मेथड बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो मेथड एक्चुअली में है कौन सा जिसकी वजह से आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने वाले. राइट. Along with that, the second question remind us of the fact that not all elections are democratic. और दूसरा फैक्ट आपको क्या समराइज कराता है, क्या बताता है कि सारे के सारे अगर इलेक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डेमोक्रेसी हैं, क्योंकि सारे के सारे इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं होते. A large number of non-democratic countries also hold elections, क्योंकि बहुत सारी non-democratic country भी elections कराती हैं. In fact, non-democratic rulers are very keen to present themselves as a democratic. और मैंने आपको क्या बताया कि बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जो एक्चुअल में डेमोक्रेटिक नहीं होती, बट इवन देन दे जस्ट प्रिटेंड टू बी. और यही रीजन है कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं बट इवन देन वो बहुत ज्यादा कीन होते हैं कि वो अपने आप को लोगों का रिप्रेजेंटेटिव दिखा सके और वो बताएं कि हम डेमोक्रेटिक हैं. They do so by holding election in such a way that it doesn't threaten their rule. और वहां पे इलेक्शंस तो होते हैं, बट वो इलेक्शन किस मैनर से होते हैं कि उनका रूल उसकी वजह से डेंजर में नहीं आता है. आप लोगों ने 9th-10th क्लासेस में चाइना के बारे में स्टडी किया होगा, कम्युनिस्ट पार्टी जहां पर रूल करती है. तो वहां पे क्या है, एक ही पार्टी का रूल है, कम्युनिस्ट का. अगर आप मान लिया, अगर आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करना चाहते हो, यू विल हैव टू टेक द मेंबरशिप ऑफ दैट कम्युनिस्ट पार्टी फर्स्ट. मतलब आप चाहकर भी कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते हो. बट इवन देन व्हाट डू द पीपल ऑफ चाइना से? लीडर्स से ऑलवेज दैट वी आर डेमोक्रेटिक, राइट? सो can you think some of the examples on non-democratic elections as I have given example of China? So what do you think would distinguish a democratic from a non-democratic election? What can be done to ensure that elections in a country would be conducted in a democratic way? तो अब ऐसी क्या चीज है जो इलेक्शंस को डिफरेंशिएट करती है? कौन से इलेक्शंस को? डेमोक्रेटिक को और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को. What can be done to ensure, और आप क्या कर सकते हो कि जिसकी वजह से हमारे इलेक्शन डेमोक्रेटिक वे में हो? दिस इज वेयर कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन. यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का रोल शुरू होता है ना? यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री हो जाती है एज अ हीरो. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री लेज डाउन सम बेसिक रूल्स अबाउट इलेक्शन. क्यों?
क्यों कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बीच में आ जाता है? बिकॉज इट इज द थिंग ओनली विच लेज डाउन सम बेसिक रूल्स अबाउट इलेक्शंस. The details are usually left to be worked out by laws passed by the legislature. और डिटेल्स क्या है? डिटेल्स आर यूजुअली लेफ्ट टू बी वर्कड आउट बाय लॉज. और जो इसकी डिटेल्स है वो क्या होती है? वो किसके ऊपर छोड़ दी जाती है? जो हमारी लेजिस्लेचर टाइम टू टाइम पे लॉ पास करती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सारी चीजें डिपेंड करती है. सो दीज बेसिक रूल्स आर यूजुअली अबाउट. अब वो जो बेसिक रूल्स है हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी या फिर किसी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, तो बेसिकली वो किसके बारे में होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन होता है? हु इज एलिजिबल टू वॉट, वोट करने के लिए एलिजिबल कौन है? हु इज एलिजिबल टू कंटेस्ट, यानी वोट के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन अब जो लीडर बनेगा उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी एलिजिबल कौन है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए. हु इज द सुपरवाइज इलेक्शन, हु इज टू सुपरवाइज, कौन सी बॉडी होगी जो सारे के सारे इलेक्शंस को सुपरवाइज करेगी, मतलब उसको चेक करेगी, कंट्रोल करेगी. हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. अब यहां आ जाता है मेथड कि कौन सी कंट्री कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करती है. इट इज मेंशन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन. एंड आफ्टर दैट हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड, यानी कि वोट्स की काउंटिंग की प्रोसेस क्या है और उसके बाद जो डिसीजन निकलता है वो किस बेसिस पे निकलता है. क्या वहां पे सिंपल ऐसा सिस्टम है कि औरों की कंपैरिजन में ज्यादा वोट्स मिल गए तो आप इलेक्शन जीत गए, या फिर आपको इलेक्शन जीतने के लिए कंप्लीट मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी? So what will happen after the elections? That is also mentioned in the constitution of any particular country. So these basic rules and regulations are mentioned in the constitution of any particular country. I hope till now everything is completely clear to all of you, है ना? But we are able to understand meaning of elections, and we are able to understand or we are able to differentiate between democratic and non-democratic country. We have discussed 2 questions as well. I hope till now everything is completely clear to you. But if you are having any kind of doubt and query, you can ask your question in comment section. Next part we will do in next video. Till then, keep learning, keep revising, stay connected. Thank you. Thanks a lot.